2019 में COVID hit. I was preparing for my judiciary exam. I was pretty much confused. I was very anxious at that point of time that now what will happen. I joined in on 8th July 2021 as a trainee associate. You know, people saw a lot of potential कि नहीं, you know, we can give her more work and everything. I have my team to look after. I have my students to look after. हारो मत किसी भी situation पर. Failure कोई नहीं है, कुछ नहीं है, word ही नहीं होना चाहिए. जो आपने किया है, own it up, be proud of yourself and हिम्मत से आगे बढ़ो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू LawSikho पॉडकास्ट। और आज हम कॉन्वर्सेशन में हैं गरिमा खन्ना के साथ, जो LawSikho के टेस्ट प्रेप वर्टिकल की डायरेक्टर हैं। और आज हम जानेंगे कि ये जो जितने भी LawSikho में जुडिशरी के, सेबी के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने कोर्सेज चलते हैं, उसमें इतनी अपार सफलता हासिल करने के पीछे जो सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट रेसिपी है, वो जानेंगे। एंड और अलग अलग इंसाइट्स, हाउ शी रन्स हर टीम, कैसे लोग हैं, एंड व्हाट आर देयर इन द फ्यूचर फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड हाउ द चेंजिंग लैंडस्केप ऑल्सो फॉर जुडिशरी। तो आज जूम कैमरा से निकल के आप पॉडकास्ट कैमरा के सामने हैं। हाउ इज द फीलिंग? It's an amazing feeling, definitely, Deepak, because you know we work in remote work. We have remote work, और हम कभी एक दूसरे से face to face मिलते नहीं हैं, but it's amazing that you guys are also here, and and this podcast is happening, so it's really a wonderful feeling. And it's happening in your city. Yes, definitely. नाइस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जुडिशरी वर्टिकल वैसे भी हेड करते हैं, तो आप अपने आप सब सच बोल देंगे या पहले गीता पे हाथ रख के कसम खिलाऊं आपको? नहीं, गीता पे हाथ रखने की कोई कसम नहीं खानी पड़ेगी। डेफिनेटली आप जो बोलेंगे, आप जो पूछेंगे, मैं पूरी सच्चाई के साथ आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। अमेजिंग। तो अभी जो है करंटली आपका डे टू डे रूटीन कैसा है? क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं अभी? सो व्हेन यू टॉक अबाउट डे रूटीन, राइट, so it starts at 8 in the morning, right? Okay. And then there are other things to look after in the family, everything, and then 10:30 it's my office time, so from 10:30 to 8 I'm on the ground, right? I have my team to look after, I have my students to look after, and there are certain projects which I am actually looking into, so it's a battleground basically at that point of time from 10 to 8:30. And do you enjoy battling it out? Definitely. So whenever you get up in the morning, you have a new challenge in front of you, right? And that's what I think keep you alive, right? Whenever you get up in the morning, there are new things to look after, है ना? तो क्या होता है उसमें कि आपको लगता है that you are doing something very good and valuable, you are changing somebody's life, right? So that is an amazing feeling, definitely. And at the same time ये सारा का सारा remote setup में है, remotely you are working from Bhopal. Yes. How does it work and how does it feel? Like how does the process goes on, and what you feel internally as well about it? See, when you talk about remote work, I think every woman should have this. Okay. Every woman. Okay. Because when you are in remote work, it becomes very easy to balance your family and your work as well. Right. You feel kind of very empowered. There's a lot of empowerment when you work from home, and at the same time you're looking at your family as well, right? So there are a lot of women, that there are a lot of women who give up on their dreams just because that they need to commute from one place to another. They have their family to look after. Then there are certain families who feel like why you should work, right? Yeah. You have a lot of things to look after. Why do you need that? But I think remote work empowers you at that point of time, because it's an amazing feeling when you are able to balance your both the things, your professional life as well and personal life as well. So when you talk about LawSikho and skill arbitrage specifically, they provide you remote work, right? Yeah. And I must tell you a very interesting fact here, that my team consists of 70 members. Okay. And out of 70 members, there are 65 females. 65 females. Yes, there are 65 females. Wonderful. And they have such a conducive, supportive environment, right? It's not only from my end, but the entire organization altogether, if I talk about, right? So there are females who are going on maternity leaves. They had to leave their job in their 4th month or 5th month, right? Right. But when you are working remotely, they can easily do their job
till 6, 7, 8 months, and then they can go on maternity, right? So that kind of environment, a supportive environment, is basically needed for women nowadays. And it's amazing that we are working in such kind of a setup. So 70 people team, how do you handle them remotely? Because you're not meeting them, सब कुछ online ही है. See, when you talk about remotely, right? So definitely everything is online, Right. okay? But it's all about setting up your processes, organizing stuff in a way where, people shouldn't feel that, we are, we are not sitting together working, or we are just apart, and that kind of a feeling shouldn't come in people. Right. So what exactly happens whenever we have meetings, we meet regularly, we have our calls regularly, we make sure that, if somebody is working with us, right, they shouldn't feel very awkward in a way where, everybody has their own hustles in life, right? Everybody is hustling nowadays. Absolutely. Okay, so everybody has their own hustles. When you are at a office space, you can definitely be able to understand that person in a very different way, right? When you meet in person, as we met today. But when you are in remote work, definitely you are not able to understand that, okay? But in order to curb all these things, right, we have certain processes, we have certain meetings where we open our camera, sit together, right, chit chat for some time, right? We have our HR at place who conduct very fruitful sessions. So we have an hour where we talk to each other, know about each other, and we have certain processes where the flow of that processes are in such a way that people don't feel that we are not working together, right? They are well equipped with the things, okay, they are well equipped with the environment they are having as of now, and it's I think it's very conducive when they are at home and working together. So बेसिकली क्या होता है दीपक, इसमें आपको खुद को आपकी टीम का एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ता है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि रिमोट है, घर में आराम से हैं, बट ऐसा नहीं होता. अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट नोशन कि आप घर पे हो तो आप क्या काम कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता. काम हमारे पास उतना ही है जितना एक इंसान बाहर जाकर कर रहा है. Yes. और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कैसा फील होता है या लोगों को कैसा समझ नहीं आता है, या कैसे आप उनको समझ पाते हो, या उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली वी हैव सर्टेन मीटिंग्स जहाँ पर वी टॉक अबाउट. देन वी हैव क्वार्टरली तो नहीं, 15 days मीटिंग्स हमारी होती हैं जिसमें वी टॉक अबाउट व्हाट वी कैन इम्प्रूव, right, what we can implement so that these people be motivated and they don't think कि नहीं यार हमको ऑफिस जाकर काम करना है. So these are the things which we definitely do. Of course. While hiring आप ये ध्यान रखते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को ही ज़्यादा हायर करें, या फिर you have a system like that कि अगर ज़रूरत पड़ेगी मोटिवेशन की? See Deepak, when you talk about my team, okay, and in fact as an organization altogether, we definitely want people who need work, right? Okay. Like in 2-tier cities and 3-tier cities, जहाँ पर definitely employment बहुत मुश्किल होता है, right? तो we definitely look for such kind of people where they need a job and there is a lot of talent, I must say, in those cities as well. Absolutely. Right? So हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें Tier 1 में ही सब कुछ मिल सकता है. 2-tier 3-tier cities definitely बहुत talented लोगों को ऊपर लेकर आती हैं. Absolutely. और जब हम हायरिंग करते हैं तो हम कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी देखते हैं कि जहाँ पर डेफिनेटली बंदा मोटिवेटेड तो है काम करने के लिए, बट साथ ही साथ कि हमारी टीम का एनवायरनमेंट वो एकदम सपोर्टिव रखे. वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब हम रिमोट वर्क में काम करते हैं, आप एक बात बताइए, आप घर पर हैं, राइट? आपकी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? एब्सोल्युटली. मेरी लाइफ में भी होंगी, राइट? बट आप उसको बैलेंस कैसे करोगे प्रोफेशनल लाइफ के साथ? तो जब आप घर पर रहते हो कभी कभी कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, राइट? बट आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. जब आपका पर्सनल प्रॉब्लम है वो पर्सनल है, प्रोफेशनल जब आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल काम है, राइट? तो ऐसे जब हम इन सब सिचुएशंस में जब हम आते हैं तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं हायरिंग्स के वक्त कि भाई बंदा जो भी हमारे पास आया है या हायरिंग के लिए हमने उनको आगे इंटरव्यू किया या जो भी हमने आगे का प्रोसेस हम जो हमारे कंपनी का है हमने जब उसको रूल आउट किया, तो हम यही देखते हैं कि भाई प्रोफेशनलिज्म और आप पर्सनल लाइफ में
आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे? ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, राइट, बट आप कितना उस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अब आप अपना घर का गुस्सा आप यहाँ पर निकालोगे, वो नहीं चल पाएगा, राइट। तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म तो डेफिनेटली आपके अंदर होना चाहिए। और घर में यार आजकल इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब सबकी लाइफ में अपनी अपनी खुद की एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप काम पर आ रहे हो, मुझे जो लगता है आपको एक हैप्पी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर काम पे हो और आपको काम पर भी वही स्ट्रेस मिल रहा है, और अगर आप पर्सनल लाइफ में भी एक स्ट्रेस के एक उसी स्ट्रेस में जा रहे हैं, right. तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? Of course. तो एटलीस्ट हम अपनी टीम का इतना तो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव रखते हैं कि भाई वी गिव दैट स्पेस टू अदर पर्सन, कि ठीक है, इवन इफ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, वी आर देयर टू सपोर्ट दैट पर्सन, right, and we will be able to definitely help much more people in that particular sense. Right. So how did you land up in this remote work and at LawSikho, of course? How did it all start? So basically, I was preparing for my judiciary exam. So I came back in 2016 and I started preparing for my judiciary exam, judicial services exam. And certainly 2019 mein COVID hit. Yeah. Right. And the exams were getting delayed, right, and the pandemic, as we all know, was very bad at that point of time. So I was pretty much confused. I was very anxious at that point of time that now what will happen, right? I wasn't able to understand at that point of time कि अब career किधर जा रहा है, and that was the biggest thing at that point of time, because exams होने नहीं थे, फिर 2 साल 1 साल वेट करो, बहुत मुश्किल हो रही थी. Then one of my friends, she suggested me that you should go for a job. I was like, हाँ, ये बात भी सही है that I can. इससे पहले जुडिशरी की प्रिपरेशन से पहले were you in any kind of job or not? So I joined a job for 6 months, and due to certain personal reasons I came back. Family में कोई बीमार थे तो. It was a corporate job. Yeah, it was a corporate job. It was an MNC in which I was working. Okay. And basically अगर मैं वहाँ से कहानी चालू करूँ तो जैसे मेरी फैमिली जो है वो एवरीबडी इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो डेफिनेटली जब एक फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो एक बच्चे पे प्रेशर रहता है कि यार ये भी गवर्नमेंट ही करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देखी होती है, राइट, वो पावर देखी होती है, राइट, और एवरीथिंग विद पावर, इन सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, एवरीथिंग, राइट. तो क्या रहता है, फैमिली में जो बच्चा रहता है वो तो सरकारी ही नौकरी करनी है, ठीक है. तो डेफिनेटली जब ये सब कुछ हुआ तो माय फादर वाज लाइक कि नहीं, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम एवरीथिंग, बट उस वक्त मेरा मन कुछ और था करने का. आई चोज माय पाथ, आई वेंट देयर. तो मेरे फादर बोले कि नहीं, कॉर्पोरेट जॉब तुमको नहीं जमेगा, देख लेना क्या है क्या नहीं है. मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, देखे. तो विद इन 6 months कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने दैट आई हैड टू कम बैक. अब वो 6 months बाद जो सर्कमस्टांसेस बने, व्हेन आई केम बैक अगेन आई वाज क्लूलेस कि अब क्या. देन आई अंडरस्टूड माई सेल्फ, आई टुक सम टाइम, थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं ठीक है, मे बी दिस गवर्नमेंट सर्विसेज आर कॉलिंग मी, राइट. आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. तो 2016 में आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. तो उसके बाद बहुत लंबा समय हो गया था. 2016 से आप ये समझिए 2021, मतलब मैंने बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम्स दिए, कुछ क्लियर भी हुए, कुछ नहीं भी हुए. कहीं कहीं तो मतलब आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट एग्जाम आई अटेम्प्टेड माई फर्स्ट एग्जाम ऑन 11 December 2016, and that was a MP Judicial Services exam, and I remember that day. तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली 0.25 से रह गया. बट ठीक है, मतलब इट्स आई डिड नॉट टेक इट दैट सीरियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. You did not take it on heart. डेफिनेटली, क्योंकि बिकॉज, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, पीयर प्रेशर की होती है. जब आप देखते हो अच्छा उसका भी हो गया, अच्छा उसका भी हो गया, फिर घर वाले, राइट, कि देखो वो तो तुम्हारे साथ पढ़ता था या पढ़ती थी, उसका हो गया, तुम कहाँ. तो डेफिनेटली वो प्रेशर मेरे साथ ही नहीं, आज अगर ये जितने भी लोग देखेंगे पॉडकास्ट को, वो ये चीज़ फील करेंगे कि ये चीज़ हमारे साथ भी होती है. एंड स्पेशली जब सरकारी नौकरी की बात आती है ना, क्योंकि सरकारी नौकरी कैसी है, अगर आप सिर्फ जुडिशरी की बात करें तो साल भर में अगर हम 1 साल की बात करें तो इन 1 year 1 lakh student, 2 lakh student appear for this particular exam. Right? And what is the success rate? 0.5% or 1%, max to max. Right? And how many people are preparing for it? Lakhs of people are preparing for it.
ठीक है. ऑल्दो एवरी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज हैव देयर ओन एग्जाम्स, राइट. सीट्स भी ठीक ठाक निकल जाती हैं. कभी कभी किन्हीं स्टेट्स में 2 साल तक भी नहीं निकल रही है. बट मतलब आप ये देखिए ना कि कंपटीशन कितना है और सक्सेस रेट उतना ही कम है. राइट. तो सरकारी, आप चाहे यूपीपीएससी ले लीजिए या आप स्टेट के पीएससी एग्जाम्स ले लीजिए, चाहे आप जुडिशरी ले लीजिए, यही है पूरा सिस्टम अभी फिलहाल कि सक्सेस रेट कम है और लाखों लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो कहाँ से आप क्या सोचेंगे उस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, मतलब अभी कर रहे हैं बच्चे, प्रिपेयर कर रहे हैं, पापा ने बोला है, हाँ कर रहे हैं. बट आई थिंक पीपल शुड थिंक कि आपको क्या करना है. राइट. तो वो 2000 से 2021 तक का जो सफ़र रहा वो बहुत स्ट्रगलिंग भी रहा कि भाई क्या होगा, कैसे होगा. हमेशा डर डर के एग्जाम देना, अब नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा. राइट. क्योंकि कोई बैकअप तो सोच कर रखा नहीं था कि अच्छा ठीक है जुडिशरी नहीं करना है तो कहीं नौकरी ही कर लेंगे और कुछ या तो कुछ मतलब कुछ भी अलग कर लेंगे बेसिकली, या यूजीसी नेट का ही एग्जाम दे देंगे या एलएलएम कर लेंगे. कोई भी बैकअप नहीं था. मतलब वो वाली बात हो गई थी कि जैसे भगत सिंह ने बोला था ना कि मैंने आज़ादी से शादी कर ली है, तो मैंने भी उस वक्त जुडिशरी से ही शादी कर ली थी. ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ. तो डेफिनेटली मतलब उस वक्त बहुत एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा. तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे बोला कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर जॉब्स. आई लाइक यार मुझे कहाँ मिलेगी, अभी इतना समय हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है कि अब मुझे कहाँ जॉब मिलेगी. देन एक्चुअली शी जॉइंड LawSikho 3 months prior to me. Okay. एंड शी वाज लाइक कि यार तू टेंशन मत ले, मैंने भी अभी लिंक्डइन पे ही देखकर अप्लाई किया है, सो यू शुड ऑल्सो अप्लाई. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. तो मैंने अपना सीवी वगैरह बनाया, उसको भेजा. तो फर्स्ट टाइम मेरी सीवी रिजेक्ट हो गई. ओके. तो अब वहाँ से और डिमोटिवेशन कि भाई यार सीवी रिजेक्ट हो गई, अब क्या होगा. बट देन आई थॉट कि भाई मेरे पास जुडिशरी का इतने साल का एक्सपीरियंस है, राइट. वाई आई एम नॉट यूजिंग इट. बिकॉज मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को काम करके देखा है टेक्स्ट के लिए कि दे डू मॉक्स बनाएंगे, ये करेंगे, दे डू सर्टेन वर्क, राइट. तो फिर मुझे लगा यार कि ठीक है चलो करते हैं ये काम, है ना. तो फिर somehow I got in connect with because I knew Ramanuj sir from my college days. मतलब he came for some seminar and fortunately my friend told me that this company का जो ओनर हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, is Ramanuj Mukherjee. I was like okay, I have already have a word with him like few years back. So I contacted him and I told him that see I'm looking for a job now and अब COVID है, so I don't know when my exams will happen or something of that. So he was very cool at that. He told me, okay, you send me your CV, and he, processed it to the other department head, that is test prep. Okay. Then I got this job. I joined in on 8th July 2021 as a trainee associate. Okay, and my work at that point of time was to write YouTube scripts. Okay, for webinars and lives. Yeah, so for YouTube, we used to have certain videos. Every day they used to shoot some videos, and I used to write the scripts of those videos. Okay. Then slowly and gradually, I think people saw a lot of potential. Ki nahi, we can give her more work and everything. So I got counseling sessions with the students. Okay. For judiciary. For judiciary, right. Now that was one thing which I enjoyed like anything, because I definitely love to talk to young minds, right. I love to understand that what they are thinking, right, what is the story behind. And a lot of times when I used to have a word with them, ऐसा लगता था यार खुद की story चल रही है. Right. Because I have been into their shoes. I can completely understand that what they are going through right now. Right. वो कहते हैं ना जो फेल होता है वो जानता है सक्सेस. वो जानता क्या है कि सक्सेस क्या है. तो मुझे समझ आता था कि यार मैं जिस दौर से गुजरी हूँ आज वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के कि हाँ मैम हम ऐसे कर लेते हैं. एंड आई फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी लकी, to be very honest, because now I am able to help those people. शायद जो help मुझे उस वक्त चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, but आज I think I had around 350 students to counsel, right. So today when I am there, I'm standing strong with my students in order to take them forward in their careers, right. And that was something which gave me a lot of satisfaction.
एंड वो फीलिंग बहुत डिफरेंट थी दीपक, आई कैन टेल यू. मतलब मुझे इतना मज़ा आता था उनसे बात करने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैसे पढ़ना है. बिकॉज वो जो 6 साल का स्ट्रगल मैंने देखा था, जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी मेरे साथ, वो आज मैं उनको सिंप्लीफाई करके दे पा रही थी. मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी वो एंगल अपने आप को, मतलब उस एंगल में मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं था. अब जैसे कॉलेज में वी वर देयर, आई यूज्ड टू टीच माई, मतलब माई फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट. और होता क्या था उसमें कि पढ़ाया खुद ने, ठीक है, फ्रेंड्स के ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए और अपने कम नंबर है. एंड दिस हैपेंस. A lot of students और a lot of people will definitely connect with me on this, that आप जब किसी को पढ़ा रहे हो तो अपने नंबर तो कम आए बट उनके ज़्यादा आ गए. तो ये कहीं ना मुझे मेरे दोस्त भी बोलते थे, यार तुझे ना पढ़ाना चाहिए, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. बट मैंने कभी वो सोचा नहीं था. When I started doing it again, I got that kick, okay, that I was enjoying the classes. Students were able to understand me, that what I am teaching, and that was a different phase altogether at LawSikho. So that was the opportunity which ekdam se suddenly it came and I took it. Then after that, I was a content head for like one and a half, maximum 7 to 8 months, and I prepared the content of all the courses, right? There was a good content before as well, but refining the content, what should go, what shouldn't go, according to the exam requirement, that what is more important for the students to read, right? Because students have so many bulky books, right? उनके पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, right? उनको लगता है कि हम बुक हमने पढ़ ली तो सब बढ़िया है, right? बट होता क्या है, एक दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, राइट? एक होता है जो मोटी मोटी बुक कर पे उसके पास नॉलेज बहुत हो जाती है, बहुत नॉलेज हो जाती है, मगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, राइट? वो एग्जाम के हिसाब से कस्टमाइज नहीं है, राइट? और दूसरा स्टूडेंट होता है कि वो वही पढ़ता है जो हम उसको बताते हैं या जो इम्पोर्टेंट होता है, और वो बहुत आसानी से उस चीज़ को कर ले जाता है, राइट? तो I used to understand the pattern of the exam, क्योंकि judiciary I was well versed, I knew that what can come and what cannot, right? But I explored the other courses as well, like IBPS SO, SEBI, then IBBI, ID, CLAT UG, CLAT PG, Supreme Court Clerkship, and last but not the least UGC NET, right? So I understood that pattern, that how it is going to be like. AIB में भी जैसे the exam requirement is completely different, right? AIB is nothing but you take your barracks into the exam, right? आप barracks को लेकर जाओ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी, तो आपको कंटेंट उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है, right? According to that whatever has been asked, right? So this is the entire thing, right? तो content फिर बनाया, so I was well versed with content of every course at that point of time. कि चलो अच्छा है कि I know what is inside out and what is the requirement, I'll deliver that only, एकदम to the point, so that my students get benefit out of it, right? बल्कि बुक्स तो हर कोई पढ़ता है, नॉलेज सबके पास है, बट जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर कंटेंट हेड से थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी, राइट? देन सडनली एक पॉइंट आया जहाँ पर आई वॉज गिवन एन ऑप्शन. सो एक पॉइंट आया जहाँ पर मुझे खुद को एग्ज़ाम देना था फॉर जुडिशरी. सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते. एक बार अगर आपने उसको पकड़ लिया, जैसे मैंने जुडिशरी से शादी मैरिजेस आर ऑल्सो लाइक दैट, ओके? इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक, राइट? तो डेफिनेटली जब मैंने जुडिशरी को करा, तो मैंने जब ये जॉब ज्वाइन किया था, मेरे दिमाग में था कि हाँ ठीक है, जितना समय लग जाए, उसके बाद मुझे तो एग्ज़ाम देना है. बट देयर केम अ पॉइंट जहाँ पर मैंने अपनी क्लासेस कम कर दी थी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गिव दिस एग्जाम, एंड आई वाजंट फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ अ टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी थी, एंड देन आई हैड टू डू दिस जॉब एज वेल. बट सडनली व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग लेस ऑफ द क्लासेस और सारी चीज़ें हुई, माई स्टूडेंट्स वर रियली अपसेट. मेरे स्टूडेंट्स मुझे रोज़ मैसेज कर रहे हैं, अब आप नहीं पढ़ाओगे क्या, व्हाट विल हैपन, हाउ वी विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम. और वहाँ पर आई डोंट नो व्हाट हिट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज लाइक, यार, just because I want to give the exam, I can't risk at so many students. I can't take that risk. There was a promise. ठीक है, there was a promise which I have made to these people. There was a dream which I have seen with them. And at that point of time, it was very difficult.
मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज एक तरफ देर आर टू वेज, और एक तरफ आपकी खुद का करियर है एंड एक तरफ आपके साथ वो 700-800 स्टूडेंट्स हैं जो आपसे रोज कनेक्ट करते हैं, राइट। और वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मतलब मैं उस वक्त ना अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रही थी और ना मेरे से यहाँ पर काम हो पा रहा था, तो आई वॉज प्रीटी मच डिस्ट्रैक्टेड। बट देन माई मेंटर, माई बॉस आई कैन से, आई डिस्कस्ड विद हर एंड शी वॉज लाइक कि यार देखो, 2 नाव में सवार हो गए तो कहीं ना कहीं गिर ही जाओगे, तो इससे बेहतर है एक पकड़ लो। Then I understood. Then I took some time to understand myself that what exactly I want, what I am enjoying basically. Right. और फिर दिल से आवाज़ आई कि भाई एंजॉय तो आप यही कर रहे हो जो आप अभी कर रहे हो। तो आप सोचो कि लाइफ कहाँ थी, कहाँ से चालू हुई। 2016 में वो जुडिशरी प्रिपरेशन से चालू हुई और कहाँ जाके एंड अप हुई। और उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई मैं इन लोगों के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया है, इन लोग के साथ जो मैंने एक विजन देखा है, इन लोग के साथ जो मैंने एक सपना देखा है, वो मैं नहीं, उसको मैं रिस्क नहीं कर सकती। एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच आई एम एंजॉइंग। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि उनको वही काम करने को मिले जो वो एंजॉय करें। ट्रू। ओके, इस पर्सनल इमोशनल बात के बाद एक टेक्निकल बात भी कर लेते हैं। जो नया 3-year रूल आया है जुडिशरी का, विच हैज़ लाइक लाइटनिंग बोल्ट की तरह पड़ा है जो बच्चों पे। सो बेसिकली देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि वो जुडिशरी का 3-year रूल आया क्या है, राइट। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि उन्होंने 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी है। नाउ आई विल टेल यू, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनफैक्ट तमिलनाडु एज वेल, इसमें बेसिकली 3-year प्रैक्टिस था। ओके। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी इन स्टेट्स की, कि आपको 3, या तो यू आर अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, राइट, हु इज ऑफ 25 years ऑफ एज। तो अब एक जो ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट होता है, राइट, वो 22-23 years में हो जाता है, तो दे हैव दैट 2 years ऑफ विंडो दैट दे कैन सिट फॉर द एग्जाम। एंड देन इफ इन केस दे हैव क्रॉस्ड दैट ईयर और क्रॉस्ड दैट एज, राइट, देन they will have to do 3 years of practice. Now, why practice? Because it gives you a practical knowledge of the court as well, that how the court works, right? And then it is definitely going to be a game changer when they sit as a judge on the desk, right? So practice मतलब इसमें how they judge it that कि 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, या फिर जस्ट डेट ऑफ ग्रेजुएशन से लेके? और नहीं, सो बेसिकली इसमें क्या है दैट दे हैव सेड दिस थिंग दैट द डे फ्रॉम द डे आपने जब अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल किया, उस दिन से आपकी प्रैक्टिस को काउंट किया जाएगा। ओके। एंड AIB, दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जाम, यू विल हैव टू क्लियर दैट एज वेल, ओके, राइट। सो ऑल्दो दे हैव मेड एन एक्सेप्शन कि ठीक है, फ्रॉम द डे यू आर एनरोलिंग योरसेल्फ इन द स्टेट बार, फ्रॉम दैट डे योर प्रैक्टिस विल बी काउंटेड। ओके। And इसके लिए भी once you are done with 3 years of practice, you will have to get it certified, either from a lawyer who has already 10 years of experience in law or who is practicing, or from the chief judicial magistrate of that particular court. So you'll have to get it certified. Now see, I'll tell you one thing. अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि 3 साल का ये रूल आ गया है, कैसा है, देखिए इसके 2 पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव अगर मैं स्टूडेंट एंड से सोचूं, तो स्टूडेंट एंड से क्या था, बहुत आसान था कि भाई मैंने 5 साल पढ़ाई करी और मैंने अपनी जज की तैयारी 5 साल में ही चालू करी, और मैं जब कॉलेज से निकला मैंने एग्जाम दिया और मैं पास हो गया, मैं जज बन गया, राइट। और ये बहुत एक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट एज वेल, यस, क्योंकि एक फेज होता है जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की आदत में हो तो आप कर लेते हो, अदरवाइज आप एक बार जॉब में लग गए या कुछ काम करने लग गए तो फिर वापस टू गेट बैक टू एजुकेशन इज वो इट्स अ टफ टास्क, राइट। तो अगर मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को देखूँ, अब यहाँ पर मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 साल सिर्फ जुडिशरी की पढ़ाई किया है, राइट, है ना, और अब जब ये रूल आया है तो इट हैज शेकन देम, दे आर वेरी एंग्शियस, कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या करेंगे आगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी, 5 साल से जुडिशरी कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो बोले ठीक है यार, देख लेंगे, जो होगा बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। देयर आर पीपल, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड एज वेल,
जैसे मैं अपने यहाँ की फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे ना आगे लॉयर है ना पीछे लॉयर्स है, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल टू हैव एन इंडिपेंडेंट टू हैव एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। और जनरली अगर मैं आज कोर्ट्स की भी सिचुएशन को देखूं, तो जैसे हम भी इंटर्नशिप्स करते थे कॉलेज में, तो हमें सबसे पहले इंटर्नशिप्स जब हमारी होती थी तो हमको बोल देते थे कि जाओ इसकी फोटोकॉपी करा लो, राइट, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ऐसा एक हमने भी वो माहौल देखा है, राइट, ड्राफ्टिंग एवरीथिंग दे गिव यू आफ्टर सम टाइम, जब उनको ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये जो रोज का हसल है वो ये बच्चे झेल सकते हैं, राइट, उसके बाद होता है। तो बेसिकली जब आप लिटिगेशन देखते हो इट्स अ बिट लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए लोग शायद लिटिगेशन में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है, तो इट्स डेफिनेटली अ लॉन्ग प्रोसेस। और अब जब ये 3 ईयर रूल आया है, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली थोड़े से एजिटेटेड है कि इतने साल पढ़ाई करा, कुछ हुआ नहीं, और अब भी वी आर कंटिन्यूइंग कि हो जाएगा करके, राइट। तो वो एक पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स का है, राइट। और अगर मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के बिहाफ पर देखूं, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चीज़ सही नहीं है, राइट, बिकॉज दे हैव एन गुड ऑप्शन टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट। बट जब मैं दूसरा अगर मैं पर्सपेक्टिव देखूं इस चीज़ का, फ्रॉम द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, तो सिस्टम ने क्या देखा कि भाई नए जजेस आ रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट, हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो ये अब कैसे होगा, राइट। अ लॉट ऑफ एडवोकेट्स आर एजिटेटेड कि इस जज, जनरली मैं आपको बता रही हूँ, इस जज को तो कुछ नहीं आता, ये तो अभी नया आया है, इसको क्या आता है, ठीक है। तो एक पर्सपेक्टिव वो हो गया, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो अगर ये 3 इयर्स प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया है, तो व्हाट दे एग्जैक्टली वांट फ्रॉम यू इज दैट आप दोनों साइड को समझो, बट इसमें एक चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि जो लॉ है आप अप्लाई तो वही करोगे, आप घुमा फिरा के तो कुछ नहीं करोगे, आपने जो लॉ पढ़ा है वही सेक्शन, वही बेयर एक्ट का जो सेक्शन है वही लगेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द डेकोरम ऑफ द कोर्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कोर्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोचकर उसको अप्लाई किया, दैट एक्सपीरियंस, राइट, दैट एक्सपीरियंस दे वांट राइट नाउ। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी एलिजिबल हैं, सो दे आर लाइक कि ठीक है हम तो एलिजिबल है, विल कंटिन्यू प्रिपेयरिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है कर दिया ना 3 साल प्रैक्टिस, मेरा तो सपना है मुझे जज बनना ही है, तो मैं तो 3 साल प्रैक्टिस करके भी जज बनूंगा या बनूंगी। और कुछ ऐसे हैं जो एकदम हताश हो गए कि अब आगे क्या, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें गलत की है आपने। सो बेसिकली मैं एक बात बताती हूँ, जब भी कोई प्रिपरेशन करता है, ठीक है, मोटा मोटा लिस्ट आउट ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, सारे अपने पेपर पेन ले लो, लिस्ट आउट करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम एक जो है जनरली लोग करते हैं, स्टूडेंट्स को आती है। और इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ जुडिशरी एग्जाम के लिए, इट्स अबाउट जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, लाइक यूजीसी नेट, सेबी लीगल जनरल स्ट्रीम का एग्जाम है, देन यू हैव आईबीपीएस एग्जाम, यू हैव क्लैट पीजी एग्जाम, देन यू हैव क्लैट यूजी। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं बेसिकली ये सब में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, राइट। तो क्या होता है जब आप वो एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर्स होते हैं उस वक्त, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि एक तो प्रेशर होता है, अनड्यू प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्युटली। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, जब एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करता है ना, वो सिर्फ एक स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करता, वो उसकी पूरी फैमिली होती है उसके पीछे, आप समझ रहे हैं, राइट। क्या होता है कि अगर आज मैं, अगर या आप या मेरा कोई भी स्टूडेंट है, आज वो बोलेगा अपने मम्मी पापा को जाके मैं जज बनना चाहता हूँ, मुझे उसकी पढ़ाई करनी है, तो वो तो बच्चे ने सपना देखा, बट उसके साथ साथ वो पूरा परिवार भी वो सपना देखता है, ठीक है। और वो जब वो पूरा परिवार वो सपना देख रहा है, तो वो हर वो चीज़ करता है उनके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, राइट। बट क्या होता है कि अब थोड़ी सी हमारी सोसाइटी भी वैसी है कि दूसरा क्या कर रहा है उनको देखो, तुम क्यों नहीं कर पाए, तो एक ये अनड्यू प्रेशर काफ़ी रहता है लोगों पे, राइट, बहुत अनड्यू प्रेशर रहता है। तो इट इज़ नॉट ओनली कि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आपको सिर्फ पढ़ना है, देयर आर 3 थिंग्स विच यू नीड टू मैनेज। एक तो आपका मोटिवेशन, आपका स्ट्रेस, और एक टोटलिटी में आपका इन्वायरमेंट, जो आप जिस इन्वायरमेंट में हो। क्यों बच्चे बोलते हैं कि हमको बाहर जाकर पढ़ना है, हम घर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो प्रेशर फील करते हैं ना वहाँ पे,
ट्रू। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स ये जो पॉडकास्ट देखेंगे, मेरा उनसे एक ही चीज़ का कहना है कि ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में जब आप ये 6 साल जो मैंने भी अपने दिए, वो मेरा कहीं वेस्ट नहीं गया। Absolutely. Now you are helping hundreds of people. Hundreds of people doing that. Yeah. तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, जब आप पूरी प्रिपरेशन में हो किसी भी एग्ज़ाम के, एनी ऑफ द एग्जाम्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आपको क्या देखना है कि भाई लोग सोचते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया भाई, मैं तो अभी बस ये पेपर क्रैक ही करके आऊँगा, वो एक्सपेक्टेशन है। मगर जब वहाँ पर जाकर एक स्टूडेंट बैठता है ना, तो वो सारी चीज़ें रिवर्स पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो बहुत सोच के रखा था, मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं तो वैसा भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा बड़े इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम एक ही है, ये लोग सोचते हैं कि हमें सब पढ़ना है, बट ये एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है ना, ये अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको एक टेक्निक से ही क्रैक होगा। राइट, इट हैज़ अ स्ट्रेटजी टू, इट्स नॉट जस्ट कि गधों की तरह हार्ड वर्क करो एंड इट विल वर्क। हार्ड वर्क आपका चाहिए है, बट जब तक वो हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अब भाई क्वेश्चन एग्जाम में पूछना है ABCD वाला, आप पढ़ रहे हो 1 2 3, आपको हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस नोशन कि भैया हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, हमको तो सब पढ़ना है, मैं तो कोई एक चीज़ नहीं छोड़ना चाहती, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता। इसका भी एक राइट अप्रोच होता है। तो जैसे जब मैं अपने प्रिपरेशन में थी, मैं आपको बताऊं 2016 में मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी भोपाल से, और भोपाल उस वक्त उतना मतलब रिसोर्सफुल विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी कोचिंग नहीं था, बट जो हमारे यहाँ की बेस्ट कोचिंग थी मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ से कोचिंग करी। बट वहाँ पर मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, क्योंकि एक क्लास में बहुत बच्चे बैठे हैं। हाँ, वन ऑन वन मेंटरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था। और आपके पीयर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो एक प्रेशर बना हुआ है, नहीं एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे। जैसे हम लोग आज मॉक टेस्ट ऑनलाइन सॉल्व कराते हैं, या हम लोग इन पर्सन जब होते हैं तो उनको एक शीट देते हैं जिसपे मॉक टेस्ट सॉल्व होते हैं। हमको हमारे सर क्वेश्चंस लिखवाते थे और 4 ऑप्शन देते थे। We used to write the questions and we used to write the 4 options. That is how we used to give the mocks also. Right. तो कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भैया ये प्रिपरेशन ही गलत डायरेक्शन में है। और वो सब समझने के लिए 1.5 साल तो मुझे वैसे ही लग गया। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, अब दूसरे के लिए 1.5 महीना ही है, तो पढ़ें कैसे? और उसमें राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा, मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। तो वो जो 1.5-2 साल की वो जो स्ट्रैटेजी, वो मेरा लॉस है, आप समझिए। वो मेरा लॉस था। क्यों? क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल करा, अपने आप से स्ट्रगल किया ना मैंने उस वक्त। Absolutely. क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला प्रॉपर नहीं था। तो मैंने आज अपने आप से स्ट्रगल किया कि भाई ठीक है, अब भाड़ में जाए प्रीलिम्स की तैयारी, मैं अब मेंस पहले बढ़ती हूँ, प्रीलिम्स तो अपना निकल ही जाएगा। अब राइट अप्रोच वही थी, बट किसी ने बताई नहीं। और आज वही जो अप्रोच है वो मैं आज अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि भाई गलती कर रहे हो, मेरे जैसी गलती मत करना, राइट। और हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बोला कि भाई मेरे से सीख लो, समझ रहे हो? मैं ऐसी इंसान हूँ जो गलतियां कर करके सीखी हूँ। राइट, मेरी नॉलेज से भी लो, मेरे एक्सपीरियंस से भी लो कि भाई जो इंसान इतनी गलतियां कर करके सीखा है, वो गलती, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वो गलती तुमको नहीं करने दूंगी, राइट, क्योंकि आज वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, राइट। अब उस वक्त जब मैं 2016 में यहाँ पे थी, तो कोई बैकअप ऑप्शंस भी नहीं। मैं देखती थी अपने दोस्तों को LLM कर लिया, अरे वाह LLM कर लिया, बट मेरे दिमाग में वो कभी चीज़ नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए, जैसा मैंने बोला कि मैंने जुडिशरी से शादी कर ली थी, राइट, तो मेरे दिमाग में वो कभी आई नहीं। बट फिर एक सब्जेक्ट है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब लेट्स से इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, CPC, सारे प्रोसीजरल लॉज हैं, CPC, CRPC, उनको पढ़ना कैसे यार, इतने बड़े बड़े हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपना खुद का एग्ज़ाम प्रोसीजरल लॉज की वजह से ही फेल किया था पहली बार। ओके। तो मुझे बड़ा वो हो गया था, क्योंकि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी मैं उस वक्त सॉल्व नहीं कर पाई, या मैं प्रेशर में थी, या मैंने ध्यान नहीं दिया, या जो भी कुछ था उस वक्त एग्जाम। बट अब आप ये समझिए कि वो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है कि कुछ सेट पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को, राइट।
राइट अगर अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है पढ़ना कैसे है, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप लेंगे, इतनी टिपिकल लैंग्वेज है उसकी बेयर एक्ट की, आप समझ नहीं सकते कि वो लैंग्वेज क्या है। बट अब आपको उस लैंग्वेज को तोड़ना कैसे है, कॉमा कहाँ है, मे कहाँ लिखा है, द कहाँ लिखा है, उसको पढ़ना कैसे है, और वो कॉन्सेप्ट क्या रहा है इन टोटलिटी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट It's very important to understand that there are several subjects when you are preparing for judiciary or any of the exam. If you talk about UGC NET also, SEBI General, SEBI Legal exam also, there are n number of subjects. एंड दीज थिंग्स जो अभी जैसे आपने प्रॉपर्टी एक्ट का बताया, ये ग्रेजुएशन में LLB में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। जब हम कॉलेज में होते हैं हमको कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। राइट हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं कि हाँ भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। जब आपने एग्जाम गए, आपने एग्जाम में उसका 1-2-3 पन्नों का आंसर लिख दिया, आपको अच्छे नंबर मिल गए, दैट्स इट। राइट बिकॉज हम सब कॉलेजेस गए हैं, वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, राइट क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो प्रोफेसर्स बहुत समय से उसको चलाते हुए आ रहे हैं, और वो एक्चुअली कॉलेज के हिसाब से एकदम सही है, बिकॉज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो चाहिए, तो थ्योरी तो आपको पढ़नी है, तो वो आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। राइट बट जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आता है, राइट तो हम उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस आउट करते हैं। राइट क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा मान लीजिए जज बन गया, कोई बच्चा सेबी ऑफिसर बन रहा है, राइट आपने उसको पढ़ा दिया, ठीक है, अब वही चीज़ तो वो कॉलेज में भी पढ़ कर आया है, आप डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? आपने डिफरेंस कहाँ क्रिएट किया? आपने डिफरेंस यहीं क्रिएट किया ना कि जो बच्चा आपके पास आ रहा है, एक तो वो बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, राइट पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम रिक्वायरमेंट वो पहले डेप्थ में पढ़ रहा है, और फिर उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता रहे हैं कि बेटा देखो अगर फ्यूचर में आपको कभी ऐसी चीज़ें आई तो आपको इस तरीके से इस लॉ को अप्लाई करना है। नाउ दैट इज द मेजर डिफरेंस व्हिच वी मेक, राइट और ये हर जगह नहीं होता। और इसके मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने के बाद जब कोई मेंस लिखने बैठता है तो द आंसर का पूरा तरीका ही बदल जाता है, राइट? डेफिनेटली क्यों? क्योंकि आप जो एग्जाम्पल्स वहाँ पर साइट करोगे, राइट जो आप मेंस में आप जो आंसर्स लिख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ प्रैक्टिकल वे ऑफ सीइंग द थिंग्स, राइट यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू सीइंग द थिंग्स, तो डेफिनेटली आप जब उस आंसर को आर्टिकुलेट करोगे, देखो हर एक बच्चा जब आंसर लिखता है ना उसका एक टच होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम पैटर्न तो वही है कि आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न तो वही है कि भाई आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है, राइट बट जब आपके पास नॉलेज एक अलग डायनामिक से भी होती है ना, जैसे हमने बोला कि अभी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, तो आप जब उसका आंसर पढ़ेंगे आप उस आंसर को पढ़कर समझ सकते हैं ये चीज़ कि इसमें कुछ अलग है, और वही जब वो एक एग्जामिनर रीड करता है वहीं वो एक एज लेता है, राइट। तो ये सेम चीज़ जो ट्रेडिशनल कोचिंग है उनमें भी कराई जाती होगी? देखिए जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं जनरली, ठीक है, अब बहुत क्या होता है कि वहाँ पर दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक ही जगह, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वन ऑन वन मेंटरिंग करके उनको ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनके पास इतनी कॉपीज आती हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे चेक करोगे? अगर चेक हो भी रही हैं तो 10-15 दिन बाद मिल रही हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ। बट जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें एट लॉ सीखो, व्हाट वी डू इज दैट वी हैव at least 10-15 evaluators, right? We encourage our students to prepare for mains first, start writing your answers, right? And we evaluate them. So जब एक बच्चा शुरू में आंसर लिखता है तो उसको 2-2.5 घंटा लगता है, दिमाग नहीं चलता कि क्या क्या लिखो, उसको लगता है कि आंसर एक अच्छा लिखना है तो सब लिख दो, राइट? बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको रिफाइन करते जाते हो। जब आपकी कॉपी इवैल्यूएट होकर विदिन 24 आवर्स आपके पास आती हैं तो उसको तुरंत समझ आता है कि अच्छा मैंने यहाँ पर गलती करी है, मतलब मैंने यहाँ पर गलती करी। So it's not just marks, it's proper evaluation. It's proper evaluation. कहाँ से क्या ठीक होगा? मतलब अगर even if that person has written the spelling wrong, we mark it and we tell him कि भाई ये भी गलत किया आपने। तो this is one thing. तो यही मेरा आपसे कहना है कि जो हम जब मैं पढ़ती थी तो इतना रिसोर्सफुल चीज़ें नहीं थी, राइट। और आज जब हम इन स्टूडेंट्स को देखते हैं और इनसे जब बात करते हैं और वो एक डेफिनेटली एक जोश उनमें देखते हैं जो हमारे पास भी था एक समय पे कि हाँ नहीं हमको कुछ करना है, और जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में हम उनको मोल्ड करते हैं
तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अब चीज़ें फिर भी बहुत आसान हो गई हैं. और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट लॉ सीखो हैज मेड इट वेरी 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 इजी. बिकॉज लेट्स से दैट इफ देयर इज अ स्टूडेंट, अगर वो जुडिशरी एग्जाम नहीं निकाल पाता है, देखो गारंटी नहीं है, राइट? बट एटलीस्ट दे आर नॉट क्लूलेस व्हाइल दे आर एटलीस्ट दे आर नॉट क्लूलेस कि भाई क्या करूंगी मैं आगे या क्या करूंगा मैं आगे, अब तो कुछ डेड एंड है मेरे लिए. वो चीज़ें डेफिनेटली एक इंसान को बहुत परेशान करती हैं और एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान करेंगी. क्योंकि अगर आप लड़कियों के बारे में देखो तो जहाँ उन्होंने कॉलेज पास किया तो शादी होने बोलने लगते हैं, घर वाले की शादी कर देते हैं. लड़कों के ऊपर वैसे ही बहुत बर्डन रहता है, डेफिनेटली कमाओ, परिवार चलाना है, आगे ये करना है, राइट? तो उन पे भी एक अनड्यू प्रेशर रहता ही है. तो जब आप देख रहे हैं कि जब ऐसा इन्वायरमेंट है और कोई अगर डेफिनेटली एक सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर होते हैं. तो लेट्स से कि अगर एक स्टूडेंट है, अब उस पर ये प्रेशर है. कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम घर वाले शादी कर देंगे. मतलब कोई शादी नहीं करनी है, चुपचाप पढ़ो, राइट? मतलब और अगर करेंगे भी तो तुम अपना 1 साल उनसे मांगो कि भाई मुझे पढ़ना है, राइट? तो जब ऐसे सब सिचुएशंस हमारे पास भी आती है और हम जब देखते हैं तो एटलीस्ट मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो तुम्हारे पास तो कितने सारे बैकअप ऑप्शंस हैं, ठीक है? मैंने बोला अगर बहुत प्रेशर आ रहा है कि नहीं करनी ही है अब, तो तुम UGC नेट का कोर्स लो, बिकॉज तुम्हारे बंडल में है. UGC नेट में एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गो आउट एंड अर्न वेल, राइट? बीइंग अ प्रोफेसर यू कैन टीच एनीवेयर, यू कैन डू रिमोट जॉब्स एज वेल. सो जो बंडल है इसमें जुडिशरी, लेट्स से जुडिशरी का है, तो जुडिशरी के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड व्हेन डू दे स्टार्ट? लाइक अभी जुडिशरी का अगर कोई स्टूडेंट फोकस कर रहा है तो दे डोंट वांट टू बी मिक्सड विद अदर थिंग्स, क्योंकि वो टाइम जो है दे वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. तो अभी वो हाउ डज दिस बंडल इफेक्टिवली वर्क? So basically whenever a student comes in the system, in LawSikho system basically, so we have a policy, right? And what policy do we have? That when a student is coming, that student should actually prepare for 6 months. Only judiciary. Okay. Because see, whatever courses we have in the bundle, we have UGC NET, we have civil litigation, criminal litigation, then we have contract drafting, okay, then we have CLAT PG. So all of these courses, right, they can do really well when they have a slight of good knowledge about the procedural laws. Right. So let's say if we started, generally हमारे एक schedule बना रहता है कि what all subjects we need to start when a batch is starting. तो जैसे अब हम वी यूजुअली स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एंड CPC. हम कॉन्ट्रैक्ट और CPC से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि CPC एक प्रोसीजरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक थोड़ा सा मतलब मस्ती वाला लॉ हो जाता है. तो वो क्या है कि एक बड़े सब्जेक्ट के साथ एक छोटा सब्जेक्ट पढ़ाना तो थोड़ा लाइट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. राइट. देखो लर्निंग मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए ना, फन लर्निंग होनी चाहिए, कि जब आप क्लास में बैठे हो तो आपको आइडिया ही नहीं है कि यार क्लास भी खत्म हो गई. तो उतना एंजॉय बच्चे को करना चाहिए जब आप क्लास ले भी रहे हैं. तो जब ये सारी चीज़ें जब होती हैं, राइट, तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि किस तरीके से आप एक स्टूडेंट को बता रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि CPC का स्केड्यूल बना हुआ है, तो जब हम एक बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा फन लविंग सब्जेक्ट देता है. तो अब अगर एक बार बच्चे ने CPC पढ़ लिया तो डेफिनेटली वो एक तरीके से तैयार हो जाता है सिविल लिटिगेशन के कोर्स को करने के लिए. Okay. क्योंकि उसमें एक प्रोसीजरल लॉ सबसे बड़ा है CPC, सिविल लिटिगेशन अगर हम देखें, राइट, क्योंकि वो हर जगह यूज़ होता है ना. तो एक तरीके से वो तैयार हो गया. तो जब हम 6 महीना लेते हैं कि हम थोड़ा सा स्टूडेंट को ऐसा कर दें कि ठीक है, एक फोकस्ड रहे, कि उनको पता है कि उनको जुडिशरी उनका फाइनल एम है, वो वहाँ पर उनका फोकस रहे, राइट. एंड साथ ही साथ देन वी गिव देम आफ्टर 6 मंथ्स. जैसे कुछ बच्चे हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा जिनका वीक होता है, उनको बहुत ज़रूरत होती है, तो उस 6 महीने के बाद फिर वी टेल द स्टूडेंट नाउ यू कैन ऑप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ लिया है. CPC के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखोगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्ट्रैक्ट तो पता होना चाहिए ना कि क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता क्या है, राइट. तो एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से. एब्सोल्युटली. तो जब हम 6 महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा दें कि उनको वो दूसरे कोर्सेज के लिए भी वो सपोर्टिव रहे. तो यहाँ पर तो आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख ही रहे हैं, बट जब आप वो दूसरे कोर्सेज भी लेते हैं, जैसे सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशन भी लेते हैं, तो उधर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में और उनको बेहतर क्लैरिटी आ जाती है. राइट.
और यही एक चीज़ है कि हम इनको कोर्सेज को बंडल में लेके आते हैं, राइट? कि एक बैकअप ऑप्शन स्टूडेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो बैकअप ऑप्शन, first they will prepare for judiciary outrightly, and backup is of course it is as an option. तो वो तब शुरू करते हैं जब दे लाइक कि अभी दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग और नॉट. क्योंकि जैसे आपने तैयारी की तो यू गेव लाइक योर 3 years, बट देन कोविड हैपन तो 4th हो गया वो, कि 4 years यू गिव टू इट एंड यू आर सेइंग कि आई वाज मैरिड टू जुडिशरी. दैट मीन्स कि मुझे इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचना. आपके जैसे ऐसे स्टूडेंट भी आते होंगे जिनको कुछ अभी सोचना नहीं है कि हार्ड कोर 1 साल लगे 2 साल लगे, इट इज़ गोइंग टू बी जुडिशरी. तो उन लोगों को ये बैकअप ऑप्शन डिस्ट्रैक्टिंग या वैसा नहीं लगता? नहीं, देखो डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है ना. होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं रेगुलर में, तो क्या है, एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि ठीक है ये तो मैंने किया ही है. अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इतनी स्टबन थी कि मैंने कुछ नहीं किया, और आज मैं जब पीछे पलट कर उस चीज़ को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार 6 साल, और मैं इन 6 साल में शायद अगर मुझे इतना ज्ञान होता बेसिकली तो उन 6 साल में मैं क्या क्या कर सकती थी. मैं LLM कंप्लीट कर लेती, मैं UGC NET का एग्ज़ाम दे देती, कम से कम पढ़ाई करते करते मैं अर्निंग हो जाती, मैं अच्छे किसी कॉलेज में प्रोफेसरशिप करती, राइट. वो बैकअप ऑप्शन नहीं रहता तो कम से कम अच्छा ठीक है, जुडिशरी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे हाई कोर्ट क्लर्कशिप का एग्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का एग्ज़ाम है, बट इतना नॉलेज नहीं था ना. नॉलेज इज वन थिंग, बट प्लान बी प्लान सी आपके प्लान ए को कमजोर नहीं कर देते क्या? वो भी नहीं था. तो आज जब मैं उनको देखती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चलो 1 साल 9 महीना, देखो किसी भी जुडिशरी एग्जाम या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, 9 to 10 months काफ़ी है अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो तो. ओके. कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो 9 to 10 months. और दिन में घंटे कितने उसमें? दिन में अगर देखिए, अब हर किसी का, हर एक स्टूडेंट का रिटेंशन पावर अलग होता है, राइट. और बेसिकली ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है दीपक, राइट. आज अगर मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैंने अपनी जुडिशरी तैयारी चालू करी, आज मैं कोचिंग गई, 2 घंटा कोचिंग होकर आई, बट मेरा पढ़ने का घर वापस आकर मन नहीं गया, क्योंकि मैं आज बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ कर आ गई हूँ, मैंने 2 घंटे कोचिंग में पढ़ लिया है. ओके. दूसरे दिन मैं 2 घंटा कोचिंग गई, फिर मैंने सोचा कि मैं आज 1 घंटा अपना रिविजन करती हूँ. ओके. 3 घंटा वो. फिर तीसरे दिन गई, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चलो 2 घंटा कोचिंग हो गई, आज 15 मिनट और दे देती हूँ, 1 घंटे के साथ 15 मिनट और. तो बेसिकली आप अगर किसी दिन आप मानो जोश जोश में 8, 9, 10 घंटे पढ़ लिए, आपका दूसरे दिन पढ़ने का ही मन नहीं होगा. हाँ ये तो है, मतलब तो हर एक बच्चा अलग है अपने में. तो हमेशा यू शुड ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स रादर देन टेकिंग बिगर स्टेप्स, राइट. ठीक है. छोटे छोटे स्टेप्स लो. और मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता सकती हूँ बिकॉज हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है. तो जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो दे रन लॉन्गर. ओके, नाइस. ठीक है, लंबी रेस के घोड़े बन जाते. बट जब कोई आज सोचे कि हाँ आज 10 घंटा, कल 10 घंटा, परसों 10 घंटा, एक हफ्ता 10 घंटा, उसके बाद गायब. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, राइट. एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ हैज वेल. लेट्स से कि अगर एक स्टूडेंट है, वो आए हमारे यहाँ, सो वी हैव अ बिगिनर्स असेसमेंट टेस्ट, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ नॉलेज दैट पर्सन हैज ऑफ लॉ. Right. So let's say we have a 100 marks question paper. Okay. Now that person attempts, like let's say he has scored 40, 45. Now we know that we need to, how much we need to work on this person. Okay. Because इसी चीज़ से हमको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं. फोकस कितना है, नॉलेज कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी रख पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट आपको ये सब चीज़ें देखकर एक स्टूडेंट की, उनसे बात करके भी काफ़ी कुछ समझ आता है, राइट. तो आज अगर उसका बेंचमार्क 45 है और उसको मुझे प्रीलिम्स एग्जाम करने के लिए 90 नंबर लेके आने हैं, मतलब आई विल एम फॉर 100 out of 100, देन ही विल स्कोर 90 somehow, राइट. तो आई नो दैट अब इसके जो 45 मार्क्स का आज बेंचमार्क है एंड द रिमेनिंग मार्क्स मुझे उसको प्रिपेयर कराना है. तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि भाई लेट्स से इवन एवरी डे यू आर डूइंग अ मॉक, एंड इफ यू आर इम्प्रूविंग बाय 1 or 2 marks as well, consider this as your victory. Yes, it's a growth. It's your growth.
this is the pattern which we actually follow when we prepare our students, right? Okay. So we know ki what are the strength, what are the weaknesses, right? How much this person can give. So we always tell our students to take small steps कि भैया एकदम बेबी स्टेप्स लो, बिकॉज अगर आप अपने आप को अभी उस प्रेशर में डाल दोगे तो आप लॉन्ग रन में आप वो काम ही नहीं कर पाओगे. यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. और इसका इवैल्यूएशन की कोई वीकली या मंथली इवैल्यूएशन की उनसे खुद का कि कितने घंटे आपने पढ़ा है या इज देयर अ ग्रोथ, ऐसा कुछ? So basically we have the entire mentorship department, the counseling department with us. So these all the counselors, what they do is that they stay in touch with the student. Okay. So every week they have a follow-up call. So let's say today was the first call I had with you. I set your targets according to your requirements. Okay. According to your schedule of the day. Right? कि there are certain people who come and tell us that कि okay 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा. So we understand कि भाई how much time it will take for this person to crack the exam. अगर ये 2 घंटे भी consistency से पढ़ रहे हैं, इसका grasping power क्या है, right? Right. तो वो process क्या होता है, जो counselors होते हैं they get in touch, they are in touch with them every day. Okay. Right? And let's say that if in case they are facing any sort of a problem except their personal problems, and if that personal problem is affecting their preparation, then definitely we have a word with them कि भाई क्या हो गया है. So दीपक, एक जो एग्जाम होता है ना, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, इसके लिए आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट एक स्टूडेंट के साथ क्रिएट करना पड़ता है. Right. दे आज की तारीख में एवरीबडी नीड्स टू बी अंडरस्टूड, बट बच्चों को एक्चुअली ये नहीं समझ आता कि हम गलत कहाँ गए. और वही काम बेसिकली हम उनको शुरू से सिखाते हैं कि भाई देखो ये एग्जाम है, इसकी एक स्ट्रैटेजी है, प्रिपेयर ऐसे करना है. अब मैं जब 6 साल स्ट्रगल करी हूँ, मुझे समझ आया कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी हैं. हाँ. और वही गलतियों को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि भाई मैंने करी है, तुम मत करो. और अगर अब तुम करोगे तो फिर मुझे नहीं पता कि फिर आगे क्या होना है. हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो नहीं रहता ना कि ये मेरे पास रिसोर्स नहीं थे या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी. यदि बिकॉज व्हेन यू हैव एवरीथिंग एंड प्लस यू हैव पुट इन योर हार्ड वर्क, तो फिर जब आप आगे जाते हो तो एटलीस्ट यू आर इंटरनली फुलफिल्ड कि मैंने अपना सब कुछ ट्राई किया. नाउ अगर नहीं हुआ तो भी इफ आई एम डूइंग न्यू थिंग, आई विल टेल यू, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं सबको बताती हूँ कि भाई ये मत करो. राइट. बट फिर भी जब एग्जाम देकर आकर फोन करेंगे, मैम हमसे ये गलती हो गई, और फिर मैं उनको बोलती हूँ भाई तुमको समझाया था. मतलब एक एक क्वेश्चन हम समझाते कि यहाँ पर ये गलती हो सकती है, ये गलती आप नहीं करना, बट फिर भी गलती करके आएंगे. राइट. अब वो ह्यूमन है, टेंडेंसी है. बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठते हो आपके ऊपर प्रेशर रहता है. कोई एआई तो है नहीं कि कोई एआई तो है नहीं कि मतलब हाँ ठीक है हम गए और वहाँ पर हमने वैसा का वैसा सब बिल्कुल वैसा का वैसा कर लिया. कभी कभी आपको आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं. और वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप या तो बहुत ओवरवर्क कर लिए होते हो अपने पे, राइट, ठीक है, और या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो कि भाई अगर इसके बाद ये नहीं तो फिर क्या. तो ऐसा होता है अक्सर कि यू नो कि कौन सा स्टूडेंट इज गोइंग टू क्रैक, एंड वो जजमेंट, प्री जजमेंट जो है वो आपकी रहती है और कितना एक्यूरेट रहती है फिर वो? प्री जजमेंट तो डेफिनेटली रहती है, क्योंकि जब एक बैच आता है, ठीक है, तो हमें समझ आता है कि वो बैच कैसा टाइप का है. राइट. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, भले ही बैच इकट्ठा आ रहा है, ये सब दोस्त बन जाते हैं. हाँ. भले ये ऑनलाइन सेटअप में है, और ये सब दोस्त बन जाते हैं. इनके स्टडी आवर्स एक सेम हो जाते हैं, बिकॉज हमारे काउंसलर्स कभी कभी इनको ग्रुप स्टडीज भी करा देते हैं. अच्छा. राइट. ये बोलेंगे कि ठीक है ये आपके शहर के आसपास के लोग हैं, राइट, तो आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए, दे हेल्प ईच अदर. ओके. ठीक है. बिकॉज a lot of times what happens is ऑनलाइन सेटअप है तो लोग सोचते हैं कि वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, राइट, बट वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दैट. ओके. तो उनका क्या है कि वी कनेक्ट पीपल ईच अदर. तो जब एक बैच आता है हमारे पास तो हमको समझ आता है कि भाई वो बैच कैसा आया है. आपके मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट एंड मॉक इंटरव्यूज ये कैसे रहते हैं? 3 स्टेजेस हैं इसमें. तो आप अगर देखेंगे प्रीलिम्स, राइट, तो प्रीलिम्स इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है. मेंस में पूरा रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है. right. तो पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये 3 स्टेजेस क्यों होती हैं, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. स्टूडेंट कहते हैं हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, स्टूडेंट कहते हैं रिटन है, ठीक है, मैं समझती हूँ वो आपकी बात की बिल्कुल सही है, उनका भी जो पर्सपेक्टिव है. right. बट आप इसको इस तरीके से समझिए
कि जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेबी भी क्यों ना हो, उसमें भी 3 लेवल प्रोसेस है, जुडिशरी में भी 3 लेवल प्रोसेस है। तो जो ये फेज 1, फेज 2 या इंटरव्यू, या हम कह रहे हैं मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो सबसे पहले जब प्रीलिम्स होता है जुडिशरी में, उसमें वो आपकी लॉ की नॉलेज को टेस्ट करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, कि आपको लॉ की कितनी साउंड नॉलेज है, राइट। फिर सेकंड स्टेज आती है आपकी मेंस की। अब वो मेंस में क्या आपका टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने कम समय में कितना अच्छा आंसर को आर्टिकुलेट कर सकते हो, मतलब कितने कम शब्दों में आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझा सकते हो, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि एक जज की एक क्वालिटी होती है दैट यू नीड टू राइट जजमेंट्स। अब हम देखते हैं कि 200-300 पेजेस के जजमेंट्स हैं, बट जो मेन पार्ट होता है जजमेंट का वो बहुत क्रिस्प और सॉलिड होता है, राइट। तो the students need to understand, the examiner also need to understand this, that you know how well you can write in your mains exam. And last but not the least is your interview stage, right? तो जब इंटरव्यू स्टेज होती है, उसमें बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम सीपीसी भी पढ़ लें, सीआरपीसी भी पढ़ लें, यू नो इतने सारी चीज़ें हैं, ये भी पढ़ना है, बट स्टूडेंट इसमें एक चीज़ भूल जाता है, दैट इट इज़ नॉट योर नॉलेज टेस्ट। नॉलेज तो उन्होंने आपकी प्रीलिम्स और मेंस में देख ली है, राइट। अब आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो अब जब आप इंटरव्यू की भी बात करेंगे, तो इंटरव्यू में भी दे आस्क यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप उस सीट पे जब बैठोगे तो आप वो प्रेशर हैंडल कैसे करोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जनरली कहा जाता है, जब हम इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू में जब हम घुसते हैं, जब हम इंटरव्यू हॉल में घुसते हैं, तो जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि वेदर दिस पर्सन विल बी सूटेबल और नॉट, राइट, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स साइकोलॉजी बैकग्राउंड के भी लोग वहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू बेटर, राइट। तो जब आप वहाँ पर जाकर बैठते हैं, राइट, सो यू अंडरस्टैंड कि भाई वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, बट देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनालिटी को बाहर निकालेगा, एंड जब तक आपकी वो पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकाल लेते, वो नहीं समझ लेते, वो जब तक आपको ग्रिल करेंगे। तो ये इंटायर प्रोसेस बेसिकली होता है। जब आप, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो जैसे वी एट लॉ सीखो व्हाट वी डू इज दैट कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर, हमारे यहाँ 2 सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट हमारा टॉपिक वाइज क्विजेस का है जो हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, और एक हमारा है मॉक्स एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट। सो व्हाट दे डू इज दैट दे एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस सारे, एंड देन दे मेक टेस्ट सीरीज। ओके, तो टेस्ट सीरीज दे व्हेन दे मेक, तो उनकी एनालिसिस के हिसाब से कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन नियर फ्यूचर, राइट। नाउ ये एक्सपर्टीज हर किसी के पास नहीं होती, बट वी आर ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, दैट वी नो दैट नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन नियर फ्यूचर, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली हमारे जितने एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आउट ऑफ 172 क्वेश्चंस वर फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। Okay. मतलब they were already included in your test series mock test and student had already answered. And if any student who is there with us, if they actually, if they do the topic wise assignments also, तो आप 100% उसमें है ना, ठीक है। Like छत्तीसगढ़ 72, then we had Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में 50% for paper was from our repository. Amazing. राजस्थान में out of 100 there were 60 questions which were from our repository. तो अगर आप देखें, अगर मॉक टेस्ट सीरीज को भी अगर आप एनालाइज करें, तो अगर कोई बच्चा वो मॉक टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ से कर रहा है या ले रहा है, आप समझिए 75% तो वो ऑलरेडी इन है, उसको सिर्फ अपने 15% पे और काम करना है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ यू नो डूइंग द मॉक टेस्ट सीरीज एट लॉ सीखो। So this is something which is very amazing, and we understood that, you know, when we do the paper analysis, जैसे ही question paper आता है, तुरंत we do the analysis and we put it on the YouTube, right? So that students can analyze that how many questions they have done right, how many questions they have done wrong. Then student come to us and then we tell that student कि भाई देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, now in next exam you need to prepare all these things. So that is how we actually work. When you talk about mains, right. तो मेंस में भी अभी रिसेंटली यूपी का हुआ, राइट। सो यूपी में जो 3 पेपर्स थे उसमें हमारा 70-80% पेपर फ्रॉम आवर रिपोजिटरी। ऑलरेडी क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उत्तराखंड में भी द सेम थिंग हैपेंड, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट
is analyzing that path, that what can be asked. That is something which is very important. Right. Now nobody is going to tell you कि हाँ भाई ऐसा कर लो, right? No one is going to tell you कि हाँ ठीक है, you should do this analysis, you should understand the pattern of the paper. What we do at LawSikho is that we make them understand that देखो, these are the important things which you need to work upon. Now जब किसी student का preparation, मतलब it doesn't matter that he or she is a LawSikho student or not, बट एक बहुत जेन्युइन और एक बहुत सिंपल तरीका है इसका, दैट आपकी प्रिपरेशन ना 3 फेजेस में होनी चाहिए. पहले तो आप एनालाइज करो कि पैटर्न क्या है पेपर का, राइट? कि व्हाट इज द पैटर्न, एग्जैक्ट पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो वो तो आप करके ही जाइए एग्जाम में, ठीक है? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. देन सेकेंड स्टेज जो आता है, सेकेंड स्टेज कहाँ पर, जहाँ पर आपको ये पता है कि यार ये आज तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन पेपर में, बट ये आ सकता है. आपका सेकंड स्टेज हो गया. और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ये कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बोलते, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट ज़रूरी नहीं है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वो पूछा नहीं जा सकता. पूछा वो जा सकता है. आपको उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 100 में से 2-3 क्वेश्चंस भी ऐसे हुए कि जो आपने लीस्ट इंपॉर्टेंट सोचे थे बट वो आ गए हैं, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर देम. ठीक है? तो ये क्या है, एक स्मार्ट टेक्निक है पढ़ने की, राइट? मैं ये नहीं कहती कि आप सब पढ़ो. इनडायरेक्टली मैं पढ़ा भी सभी कुछ रही हूँ, सभी कुछ पढ़ाते हैं. कोई एक ऐसा सेक्शन नहीं है जो हम छोड़ेंगे, राइट? बट उसकी इम्पोर्टेंस भी हमको समझनी पड़ती है, राइट? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. तो दैट इज समथिंग विच स्टूडेंट्स शुड लर्न एनी एग्जाम. और आपका ये नए कॉन्सेप्ट पढ़ना और साथ में रिवीजन करना, इसका भी कोई एनालिसिस चलता रहता है? डेफिनेटली. हमारे यहाँ तो सो व्हाट वी डू इज दैट कि हम लेयर्स में प्रिपरेशन कराते हैं, राइट? सो वी टेल आवर स्टूडेंट कि भाई अगर आप क्लास अटेंड आज करने आ रहे हैं तो आप उसका नोट पढ़ के आइए, जो कि उनके LMS पे उनको दिया रहता है. तो आप पहले नोट पढ़िए, आप अपनी क्लास अटेंड करिए. क्लास अटेंड करने के बाद उसी टॉपिक वाइज हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं. मतलब जैसे प्रीलिम्स के लिए हमारे पास या फेज 1 जो भी एग्जाम्स के हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, फिर मेंस में रिटन एग्जाम होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हम उनको बोलते हैं टॉपिक वाइज असाइनमेंट करिए, राइट? तो क्या है कि जो उन्होंने क्लास में पढ़ा, उन्होंने जो नोट में पढ़ा, वो फिर अपने आप को एनालाइज करते हैं कि आज मुझे कितना समझ आया, राइट? ठीक है? तो लेट्स से कि आज उन्होंने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया. दे somehow did like 80 questions, right? 20 क्वेश्चंस प्रॉब्लमेटिक हो गए, राइट? अब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए तो 90-95, जो शॉर्ट एग्जाम क्रैक करना है आपको 90-95 नंबर चाहिए, राइट? या आप कह के चलो जो भी कट ऑफ उस साल का क्वेश्चन पेपर का है, बट हमको तो तैयारी वैसी करनी है ना कि कोई ये बोले ही ना कि नहीं पेपर नहीं निकल सकता, राइट? तो लेट्स से कि आपने वो टॉपिक वाइज असाइनमेंट किया. आपने जब वो टॉपिक वाइज असाइनमेंट 100 क्वेश्चंस का किया, यू गॉट 80 क्वेश्चंस राइट एंड 20 क्वेश्चंस रॉन्ग. नाउ द काउंसलर विल सिट विद दैट पर्सन कि भाई ये 20 क्वेश्चंस गलत क्यों हैं आपके, टेल मी. फिर वो बोलेगा मैम ऐसा हो गया था, याद नहीं आया, या मैं श्योर नहीं था. नाउ वी टेल दैट स्टूडेंट कि अब इसका आप रिविजन करो, ठीक है? गो बैक, रिवाइज. तो जैसे लेट्स से कि आज मंडे है, उसका एक टारगेट सेट है, उसने आज मंडे को वो पूरा टारगेट किया. ट्यूसडे को क्या होगा कि वो नया टारगेट करेगा, बट वो मंडे की करी हुई चीज को रिवाइज भी करेगा, राइट? तो इससे क्या एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है. जब आप कंसिस्टेंट है रिवीजन में. अब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी, मैम इतने सेक्शंस हैं, रट तो लेते हैं बट बाद में भूल जाते हैं. देखो, रटी रटाई जो चीज़ होती है वो कभी याद नहीं रहती. साइकोलॉजी भी कहती है कि जो रटने वाली चीज़ होती है वो आपके दिमाग में 2 से 2.5 महीने रहेगी, 2.5 महीने बाद इट विल ऑल वैनिश. तो जितना, और लॉ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार कि आप जितना समझकर उसको पढ़ोगे, जितना समझकर, उतना आपको मजा आएगा. आपकी जो टीम है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं. थोड़ा उसका डिवीजन कैसा है, कितने लोग, इवैल्यूएटर्स, मेंटर्स और बाकी जो डिफरेंट टाइप के रोल्स में आपकी टीम में लोग हैं, वो कैसे डिवाइडेड है? देखिए दीपक, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कितने कोर्सेज से डील करते हैं टेस्ट प्रेप में, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास जुडिशरी है. नाउ वी हैव न्यूली लॉन्च्ड ADPO जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, उसको भी अभी हमने लॉन्च किया. देन वी हैव क्लैट PG,
Okay, we have CLAT UG as well, right? Okay. Then we have UGC NET, right? Then we have SEBI Legal Stream and General Stream both, जो SEBI Legal Officers बनते हैं, regulatory body है. Okay. Then we have Bank Law Officers exam, that is IBPS SO, and there are certain other exams of banks जो जिनमें लीगल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, जैसे बैंक्स भी हैं, अदर रेगुलेटरी बॉडी लाइक PFRDA, राइट? ये सारे एग्जाम्स के लिए भी जहाँ लीगल ऑफिसर्स होता है उनके ये प्रिपरेशन कराती है. देन वी हैव IBBI ऑल्सो, राइट? सो ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स एंड वी हैव ID ऑल्सो, जो कि हम साथ में उसको रन करते हैं. तो दीज आर द कोर्सेज विच आर रनिंग इन टेस्ट प्रेप एट LawSikho. राइट. सबसे पहली तो चीज़ है. इसके बाद अभी राइट नाउ आई हैव अ कॉम्पोजिशन ऑफ 70 पीपल इन माई टीम. ओके. राइट? सो फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंस के कोर्स हैं उनका एक क्लस्टर बना दिया है, राइट? सो उसमें आपका सेबी लीगल जनरल, देन IBPS SO, PFRDA, सारे बैंकिंग सेक्टर्स के एग्जाम, राइट? देन IBBI ID, वो सब फाइनेंस के कोर्स हो गए. तो एक हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्लस्टर है. ओके. देन वी हैव जुडिशरी APO. Judiciary exam and APO exam in itself are the bulkiest courses, right? तो उनका एक segment अलग है. Okay. And then we have academic cluster. We have Supreme Court clerkship in that. We have UGC NET, CLAT PG, CLAT UG. तो वो एक academic cluster है. Okay. तो my team is entirely divided into these segments. Okay. And we have in place different people, like everything centralized at one place. ठीक है? So when you talk about content, so my content team prepares the content for all the courses. Okay. According to their exam requirements. Right. When you talk about my assignment and evaluation team, they does the same thing for all the courses. Okay. We have current affairs team doing the same thing for all the courses, right? Then we have counseling team. Our course anchors also does the counseling, and we have a counseling team in place, especially for judiciary and the bulkiest exams like APO. So they do their own part. Okay. They do the same for all the courses, right? Then I have UI team, which is the most important team, I should say, because it gives you our student gets the best experience of what they are getting right now, right? So LMS notes वगैरह से लेके everything is aligned, their classes are aligned, everything. So I have all these teams at place. Okay. Right? So everything is centralized. So when all these teams are doing, they are doing work of every course. Okay. And all the course anchors, they get in touch with the team heads and they get their work done. So we have certain processes with respect to content, mocks team, mocks and analysis, which is a very important team again, right? So we have all the processes at place at that point of time. Right. So there's a very functionality, maybe बहुत smooth functionality है, because you can handle such a big team when you have good process and people, and most importantly process तो कोई भी बना देता है, but उसको follow करना भी बहुत important है. उसमें क्या सॉफ्टवेयर्स और AI भी यूज करते हैं? See, what exactly we actually look forward to is कि जैसे let's say that if a content team is preparing a note, now we have a 3-level process, review process. Okay. ठीक है? So it will be done by an intern. That person will check all the dysfunctionality कि भाई spellings are not wrong, or the font should be visible to the students, the flow chart should be at place, everything. Right. Then it goes on the second level where the content is reviewed. Okay. Right? So now let's say that there is something which has new came up in that particular domain. A new case law has come up, right? Now when the person is reviewing that content, they will say, yaar, इसमें ये वाला case law नहीं है, we should add it because it's a new one. Then that has to be added. Right. Then it goes on the 3rd level review. Okay. Where the 1st and 2nd level of review has been, again it has to be reviewed कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है. Is there any information which we are missing on? Right. That's the final go. So that's the final go. And it has to again final एक नज़र डालने वाली content head looks into that particular domain. Okay. And then pass the note to the UI team to get it uploaded. Right. So that's how we actually do our work, and it is it is uniform in the entire team. It has this process has been followed in all the centralized all the teams, right? The main teams which are doing the work for all the courses. Right. So that is the level of
review we do so that our students shouldn't be troubled at any cost. And we keep on updating our LMS every day so that students shouldn't miss on any sort of important thing, right? Any important case law, or it has to be anything. Okay, so we always try our level best to give the latest things to them so that they can improve their answer writing, they know about it, right? We do the similar things in the classes as well whenever we prepare for the classes. So every day we have a new thing to go ahead with. आपके जो टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, किस बैकग्राउंड के होते हैं? We have different courses and according to the different course requirement we have teachers. Let's talk about judiciary. So when you talk about judiciary, we have some retired judges, some judges which have taken voluntary retirement, and they are keen to impart knowledge to the students, make them judges. Then we have people who have 7 to 8, 10 years of experience in judiciary, and they have been teaching judiciary from a very long time, 8, 9, 10 years. We have those people with us, right? So we have around like 58 faculties for judiciary itself. 58 faculty for judiciary itself. Yes. So we are having plus minus, मतलब because according to the batches हैं, states हैं, चलता रहता है. So because there are a lot of people whom we need to make them learn local laws as well, right? तो वो भी एक चीज होती है, right? See, I believe in giving the best to my students because I understand one thing that they need to be given both. They need to see both the ends, theoretical and practical aspect as well. Absolutely. And a person who has served for such a long time, that person can give the best knowledge to them. Right. Because that's an applied knowledge. That's an applied knowledge. ठीक है, तो एक वो भी part है. Right. Language barrier, do you face any time? See, a lot of times we do because we have a lot of students from South background as well, right? So language barrier we have, but I think English is one language which they also understand really well, and that is why we conduct our classes purely in English. Okay, so and we have separate English batch running as well, so that if the students are pretty much they are comfortable with Hindi or उनको हिंदी में अच्छा समझ आता है, then we have that kind of a batch running as well. There are batches like where you can help Hindi Hindi medium students. Both. Okay, so judiciary exams are written in Hindi also? Yes. हाँ, तो there are batches. So ये कोई problem किसी को अगर कोई अगर webinar देख के या boot camp देख के कहीं से आ रहा है, तो they should be free of this confusion. Right. Amazing. अभी let's talk about results. Okay. So see, we have amazing results in each and every domain of our courses. Okay. So I'll first start with judiciary, right? Okay. Right now we have 45 people who have cleared judiciary in past 1 year. In past 1 year? 1.5 years. And different states? From different states. Okay. So let's say if I talk about Chhattisgarh, there are 12 students who have cracked the exam from Chhattisgarh. In 2023, there were 8 students, right? And 8 students, and then again we had 4 students again clearing that exam, right? Then from Himachal Pradesh we had 4 students who cracked the exam. Rajasthan mein we have 100 students who cleared prelims. Okay. And finally, again, as we say that we have 3 stages, and it becomes very difficult for one to understand. Right. So definitely we have 5 people who have cleared Rajasthan. Then 5 who have cleared judiciary, जिनका appointment हो चुका है. Right. Okay. Then we have Haryana we have 5 people. Okay. Then we have Arunachal Pradesh, we have 1 person clearing exam there as well, and with rank 2. So if I talk about their ranks also, the people who have cleared the ranks, they have certain good ranks, rank 3, rank 4, rank 9. Okay, like amazing. that ways. मतलब most of the states there are LawSikho students sitting on the bench. Amazing. So if you talk about judiciary, so we really do have amazing results, and definitely the kind of teaching we impart to them and the kind of services basically which we are providing has actually made them come so far. Right. तो डेफिनेटली एक वो भी एक ट्रस्टेड फैक्टर रहा है वहाँ पे. Then when you talk about UGC NET, there are 120 students who have cleared UGC NET in past few years.
Okay, And 120. recently, abhi, I think last week only we got the results. Okay. There are a couple of students who have cleared JRF this time, Okay. and there are 12 students who have cleared UGC NET. Right. Okay, we are shooting it on 28th July. रिलीज हो सकता है लेट हो, बट लास्ट वीक यू कैन इमेजिन कौन सी डेट्स की बात होगी. Then certainly abhi UGC NET का है. Then Supreme Court clerkship, we have students who are working under Supreme Court judges as of now. Okay. So there are 4 people who have cracked Supreme Court clerkship exam as well. Then when you talk about CLAT UG mein we have certain success stories, right? But we are just trying to pace it up more. Okay. Right? CLAT UG तो कितना पहले शुरू हुआ हुआ है? CLAT UG is like it has started like just now. Last year se we have started doing this CLAT UG. Right. But I think we hope that we'll get good number of success stories in coming years as well. Okay. And when you talk about SEBI Legal Officer exam, we have 5 people clearing with good ranks in SEBI also. Okay. In recently. So in 2023 we had 3 people clearing exam, and in 2024 there were only 5 seats, and out of those 5 seats 1 person cleared at rank 2. Then we have IBPS SO. Recently, last year itself, we have n number of students who have cleared IBPS SO as well, right? There are 4 people who have cleared IBPS SO. Then there are other different exams like Oriental Insurance exam. Yes. There are different kind of exams which people have cracked. Okay, so we do not only encourage कि ठीक है आपको IBPS SO की ही तैयारी करनी है तो आप उसी की ही करिए. Right. We always encourage our students because we know that what kind of requirement they need. So Right. everybody needs a government secured job. Right. Now even if you are not able to clear IBPS SO, at least आप दूसरे एग्जाम्स भी दोगे. अगर आप वो भी क्रैक कर लेते हो, इट्स अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज उधर और इधर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? तो वी डू नॉट ओनली एनकरेज कि अच्छा ठीक है इसी एग्जाम की तैयारी करने तो इसकी करो, नहीं. वी गिव देम सर्टन लेवल ऑफ ऑप्शंस कि देखो अभी इसकी भी वैकेंसी आई है, फिल दिस ऑल्सो, लेट्स सी हाउ वी नीड टू प्रिपेयर यू. सो दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट हाउ वी नीड टू प्रिपेयर दैम. Then if you talk about independent director, we have numerous success stories with respect to independent director. तो अभी तो काउंट छोड़ दिया होगा. छोड़ दिया है, because every month like 30 people, 25 to 30 people, they are clearing this particular exam. Right. And I have myself cleared independent directors exam. और उसके पीछे भी एक स्टोरी है दीपक. So basically जब independent director का ये कोर्स मैंने जब नया संभाला था तो मुझे थोड़ी सी ना हिचक होती थी, बिकॉज इसमें बेसिकली देर आर पीपल हु आर 45 प्लस 30, 35, 40 प्लस जो आते थे पढ़ने के लिए, एंड दे यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क मी कि इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे होगा. आई यूज्ड टू टेल देम द स्ट्रैटेजी, बट वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना अंदर से कि यार स्ट्रैटेजी बतानी है, अब सामने वाला मुझसे पूछ रहा है तो मैं कैसे, अब मैं बात तो करके मैं बता दी. लाइक जुडिशरी में यू हैड सो मेनी थिंग्स टू रिकाउंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे लगता है मुझे देना चाहिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल आर सो यू नो सेल्फ ड्रिवन टुवर्ड्स इट कि नहीं मुझे तो मतलब यू नो आई नीड अ स्ट्रैटेजी एवरीथिंग. राइट. देन 3 months आई एक्चुअली स्टडीड फॉर इट, एंड आफ्टर 3 months आई लाइक चलो अब एग्जाम देते हैं. आई गेव द एग्जाम, आई क्लियर द एग्जाम. और वो क्योंकि 6-7 साल बाद एक एग्जाम क्लियर हुआ है तो उसकी खुशी एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी थी, ठीक है. एंड देन आई told one of my colleague also to clear this exam, because a lot of times people think yaar these are young minds, what they will teach us, है ना. उनको एक वैलिडिटी हमेशा चाहिए होती है. आईआईटी करने के लिए आईआईटीएन से पढ़ने का जो कीड़ा भाई उनको एक वैलिडिटी हमेशा चाहिए होती है कि यार आईआईटी में जा रहे हैं तो आईआईटीएन से ही पढ़ें, या हम यहाँ जा रहे हैं तो ऐसा ही बंदा होना चाहिए पढ़ने के लिए. तो ये एक चीज़ डेफिनेटली रहती है. सो इतनी सारी चीज़ें आपने और इतने सारे शॉर्ट सॉल्यूशंस दिखा दिए. ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच इट, who wants to clear these exams. I won't show it to my father, otherwise he will say कि तू भी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दे. इतना सब कुछ तो सामने वो मिल ही रहा है, रेडीमेड मटेरियल. But I hope this is going to be helpful for everyone. Thank you so much, Garima, for opening the Pandora box of information. Anything else you want to give as a closing note? आगे क्या कभी मत सोचो, राइट? तो
एक ही चीज़ मैं अपनी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी कि भाई हारो मत किसी भी सिचुएशन से, क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पीछे माँ बाप भी हैं, ठीक है, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा भी आपको देखकर परेशान होंगे, उनको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और अगर आप इस सिचुएशन को, ये जो आपकी सिचुएशन लाइफ में आज आई है, अगर आप उसको बोल्डली फेस करके और आप उसको पार कर गए, तो आप ये समझ लीजिएगा आपकी ये बहुत बड़ी आपकी अपनी लाइफ में जीत है। ये आपकी फेलियर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वर्ड ही नहीं होना चाहिए। जो आपने किया है, ओन इट अप, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड हिम्मत से आगे बढ़ो। राइट।